Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पर आज मैं आपको जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पढ़ाया जाता है. नेवरदलेस, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट जिनको एडमिशन का कॉन्सेप्ट है, इट कैन इवन बी इन द CA कोर्स एट द वेरी प्रिलिमिनरी लेवल, दिस चैप्टर एंड दीज लेक्चर्स विल डेफिनेटली बी यूजफुल. Okay, besides me obviously providing the solution and the necessary explanation to you, if you read the very last line of this particular question, it says necessary journal entries in the books of the firm. अभी ये पीछे मेरे लेजर ज़रूर है, ओके, बट ये रफ वर्क है, ये आपको रेडी करना है. शुरुआत में करेंगे और इसको पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, बट येस, मार्क्स आपको इसका नहीं मिलेगा. प्रैक्टिस के लिए मैं पूरा करा रहा हूँ, बट सिर्फ याद रखना, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट इसके बगैर जर्नल कंप्लीट नहीं कर पाएगी. जर्नल आपको डेफिनेटली रेडी रखना है. अप्रॉक्सीमेटली 2 पेजेस का जर्नल तो हमको लगेगा ही लगेगा. ओके, राइट नाउ जो तैयारी करना था वो तो मैंने बता दिया. अभी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एंड अकॉर्डिंगली वट एवर इज़ दी एडिशनल एक्सप्लेनेशन ड्यूरिंग द सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा. ओके, अभी के लिए आप बड़ी ईमानदारी से पूरा लेक्चर देख लीजिए एंड लेटर ऑन, क्योंकि इट इज़ अ टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन. ओके, वेदर ये इलस्ट्रेशन है, वेदर ये प्रैक्टिकल है, वो टाइटल में, लेक्चर के टॉपिक के टाइटल में दिया गया है. आप पढ़ के वहाँ पे आपको पता चल जाएगा. हाँ, पद्मा एंड कुमुद share profit and losses in the ratio of 3:2. We call this as the old ratio because these are the old partners. Their balance sheet as on 31st March was as follows. So that's the balance sheet behind me. It is a very normal balance sheet. इसके अंदर creditor है, bill payable, bank loan. Normally it is transferred to the liability side. Next, general reserve, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में. कैपिटल ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये लिखा जाएगा. बैंक अकाउंट ये लिखा जाएगा बैंक में एज बैलेंस. एंड बिल पेएबल, डेटर RDD, स्टॉक फर्नीचर मशीन बिल्डिंग, ये पूरी लिस्ट हम नए बैलेंस शीट में लिख लेंगे एसेट साइड. ऑन 1/4 दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, दे एडमिटेड आशा. ये डे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही डे पे बैलेंस शीट बनता है न्यू, और यही डेट पे जर्नल एंट्रीज बनेंगे. ओके, जर्नल एंट्रीज. फॉर
half share in future profit. Asha should bring 30,000 for capital and 15,000 for goodwill in cash. Now इसका आगे explanation when I do this point, but the ratio is important कि आशा को हाफ दिया गया है. A few writings के ये रेशो का क्या चक्कर है. पद्मा कुमुद who are the old partners, उनका रेशो, एंड आशा who is the new partner, उसका रेशो. आफ्टर दिस मुझको और आपको न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो ढूंढना है, क्योंकि इट इज यूजफुल ड्यूरिंग द सोल्यूशन. इफ आई वांट टू फाइंड न्यू रेशो आई हैव टू फर्स्ट डू रिमाइंडर ऑफ 1. मतलब 1 रुपया से अगर आपने हाफ ऑलरेडी आशा को दे दिया, ओके, आशा की आशा पूरी हो गई, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए क्या बाकी है, ऑल्सो हाफ, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड रेशियो. दिस इज, आई रिपीट, प्रीवियसली डन, बट ये प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल है, मैं एक बार बता रहा हूँ. ओके, न्यू रेशियो का फॉर्मूला इज NOC and it is to be found out for all 3 partners. First partner का old multiply by combine, you get 3/10. Second partner का 2/10 and the third partner does not have an old ratio, तो उनका रेशो हाफ ही है. तो the remaining partners denominator has become upon 10. तो कुछ जुगाड़, कुछ कैलकुलेशन न्यू पार्टनर को करना पड़ेगा, विच इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5. तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई. न्यू रेशो मुझको और आपको थोड़ा अटपटा बटाया 3 to 5. अभी सैक्रिफाइस रेशो ढूंढने का टाइम है. ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स करते हैं, क्योंकि नया पार्टनर को उसका क्या कहते हैं ना, गेन होता है, फायदा मिलता है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया. दिस इज सब्ट्रैक्शन नॉट मल्टीप्लिकेशन. आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई. एंड फॉर पद्मा यू गेट 15 व्हेन यू डू द सेम, ओल्ड माइनस न्यू. फॉर कुमुद यू गेट 10. सो 15:10 विच इज 3:2. सो ऐसा काफ़ी बार होगा कि ये सैक्रिफाइस रेशो जो ऊपर ओल्ड रेशो दिया था ना, उसके सेम आएगा काफ़ी बार, नॉट हमेशा. ओके, आप ऑब्वियसली इसको पॉज कर लेना, बाद में लिख लेना. अभी के लिए तो मैं बाकी कहानी पढ़ा देता हूँ. हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. तो पहले गुडविल आया, वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर वो गुडविल विड्रॉ होगा. हाफ. द स्टॉक इज टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%. दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सेकेंड इफेक्ट देंगे. RDD is maintained at 3,000. We'll see plus के minus. And furniture should be appreciated to 16,050, building by 20% increase. So all of these are changes in the value of assets and liabilities. Step 1, creditor, bill payable and the bank loan. One by one, please note ये पूरा मेरे पीछे रफ वर्क है. ओके, तो अनफॉर्चुनेटली इसके मार्क्स नहीं. जर्नल एंट्रीज जो बैलेंस शीट में आता है उसका नहीं होता, जो बैलेंस होता है ब्रॉट डाउन कैरी डाउन उसका नहीं होता, बाकी के जर्नल एंट्रीज होते हैं. ओके, नेक्स्ट, जनरल रिजर्व 7,500. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी old partners just behind me. 4,500, 3,000. In fact मैं अभी आपको थोड़ा बेटर बता देता हूँ. ये फर्स्ट जर्नल एंट्री है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं और बैलेंस शीट में भी नहीं है. ये दोनों कहाँ पे लिखे हैं, पद्मा एंड कुमुद के क्रेडिट में. ये आपको दिखा ना, क्रेडिट में, ये क्रेडिट में पद्मा और कुमुद. तो जनरल रिजर्व जो होता है ना, वो डेबिट होता है, और जो पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो क्रेडिट होता है. आपको ठीक मेरे ऊपर जर्नल के अंदर ये फर्स्ट जर्नल एंट्री नजर आएगा. जनरल रिजर्व डेबिट टू पद्मा कैपिटल
to Kumud Capital, being general reserve distributed. So very important journal entries sir. पहला क्या सर, दूसरा क्या? जैसे आप सॉल्व करते हो वही सीक्वेंस में आप जर्नल कर सकते हो. थोड़ा आगे पीछे अगर हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम्स, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट. देन कम्स कैपिटल 45 एंड 36. सो इस तरफ पे बैलेंस में आता है ये, तो बैलेंस का तो जर्नल एंट्री नहीं होता. आफ्टर विच देर इज गोइंग टू बी बैंक, वो भी बैलेंस आएगा ऊपर 22,500, नो जर्नल एंट्री. नाउ आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एसेट्स, तो वो मैं ऊपर एसेट्स में ट्रांसफर कर रहा हूं. बिल रिसीवेबल आउटर कॉलम, data with the RDD in the tarika that I have shown you. Stock, furniture, machinery and building 45,000. So all of this, because it is rough work, आप थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पॉइंट नंबर 1, फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट in future, क्योंकि आशा is a partner for the future, आशा should bring 30,000 as capital. जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है तो कुछ इस तरह, कैश अकाउंट डेबिट. ओके, यहाँ पे बैंक लिखा है तो बैंक में हम वो इफेक्ट दे देते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल एंड मेरे पीछे बाय बैंक 30,000. ओके, मेरे पीछे. नेक्स्ट अगेन आई रिपीट, हाँ, वो कैश लिखा गया था वो रफ वर्क में, बट ऑफिशियली बैंक है. एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश. अगेन वी डोंट हैव अ कैश अकाउंट, वी डेफिनेटली हैव अ बैंक अकाउंट. तो ये आप सोचो कि बैंक ही है, उसमें पैसा आया. सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट. तो बैंक टू गुडविल और गुडविल में बाय. द मोमेंट आप ये करो वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया है. तो सैक्रिफाइस रेशियो विच इज 3:2 इन दिस प्रॉब्लम, 9,000 एंड 6,000. और ठीक मेरे पीछे बाय गुडविल विच इज द सेकेंड इफेक्ट, 9,000 एंड 6,000. तो आपने नोटिस किया कि पहले कैपिटल आया, उसके बाद में गुडविल आया और वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया गया. सो अगर मैं जर्नल का आपको थोड़ा आइडिया दूं, पहले आपको कैपिटल आया है तो मैं उसकी जर्नल एंट्री कर रहा हूं. बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल 30,000, फिर गुडविल आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग गुडविल बॉट इन कैश. और वही गुडविल इमीडिएटली ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया. गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल टू कुमुद कैपिटल. दिस इज व्हाट वी हैव डन लेटेस्ट. अगेन जो तरीके में स्टेप्स में आप लेजर सॉल्व करते हो वही स्टेप्स में जर्नल भी आने चाहिए. ओके, एक मिनट, मैं खुद भूल गया कि मैं स्क्रीन को अड़ा रहा हूँ. ये आपके जर्नल एंट्रीज, डेट वही है, द डेट ऑफ एडमिशन. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन. ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं गुडविल हमको दे दो. प्लीज नोट, ओल्ड पार्टनर्स रिसीवर बन जाते हैं, रिसीवर. तो उनके डेबिट में, अच्छा वो गुडविल अकाउंट टोटल हो गया, वो अभी करो या बाद में करो, अब कोई कठिनाई नहीं है. टू बैंक, पद्मा ने हाफ कहा मुझको दो, 9,000 का हाफ, और कुमुद को 6,000 का हाफ. यहाँ पे टू बैंक, ऊपर बैंक में बाय पद्मा कैपिटल, बाय कुमुद कैपिटल. Now this is also a journal entry. ये दोनों, पद्मा is debit and कुमुद is also debit. तो
आर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, अगर आप ऐसे कर रहे हो, मैं सिर्फ टू क्लैरिफाई द स्टेप्स और कि आपने सॉल्व कैसे किया, मैं एक साथ में भी आजू बाजू में दिखा रहा हूँ. एवरी टाइम आई कैन डू दैट, बट इतना तक तो हो ही सकता है. टू बैंक बीइंग हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by old partners. Next comes the stock is to be depreciated by 10%. तो just above me is stock, 10% is 3600, उसको मैंने कम कर लिया. Outer column 32,400, but this is first effect of 3600. एसेट आपका माइनस हुआ और वो कोडवर्ड आपको डेबिट में दिखता है. सो टू स्टॉक 3600, पहले इसको माइनस करना था, फिर मशीनरी को उसको 5% करना था, तो आई थिंक वो 750 आएगा. आउटर कॉलम 14250, दिस इज ऑल्सो एसेट माइनस, ये भी डेबिट में आएगा बिकॉज इट इज डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नुकसान होता है. इसके बाद का पॉइंट आई थिंक आरडीडी का है, विच इज टू बी मेंटेन्ड एट 3000. इफ यू लुक एट योर सोल्यूशन, आरडीडी तो पहले से 2400 है, बट दे आर सेइंग नहीं, अभी आरडीडी 3000 होना चाहिए. ओके जी, तो बाहर के कॉलम में द डेटा इज 59,400, बट देर इज नो बदलाव, चेंज, परिवर्तन इन डेटा. आरडीडी बदला जो लाइबिलिटी है, पहले 2400 अभी 3000, मतलब एडिशनल 600 लाइबिलिटी प्लस हुआ, वो आएगा डेबिट साइड पे, टू आरडीडी 600. सो लिटिल बाय लिटिल आप जो एसेट से लाइबिलिटीज में प्लस माइनस होते हो वो आप लिख रहे हो. तो अभी जर्नल एंट्री जो है वो डेबिट साइड का एक सिंगल एंट्री करूंगा मैं, और क्रेडिट में अगर कुछ आता है तो उसका करूंगा. इसके लिए मैं इमीडिएटली वहां पे नहीं जा रहा, अलग अलग नहीं करना, इकट्ठे डेबिट रीवैल्यूएशन एंड क्रेडिट रीवैल्यूएशन. पॉइंट नंबर 5, फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू 16,050 रुपीज. नया वैल्यू फर्नीचर का आउटर कॉलम में. नाउ 14,100 से इफ इट हैज टू गो टू 16, देयर हैज टू बी एन इंक्रीज, एन अप्रिसिएशन. So 1950, that is the change which is an asset plus, आपको ये क्रेडिट में दिखेगा. Buy furniture 1950, and very similarly even the building is to be appreciated by 20%, तो उसको प्लस करेंगे, आपको आई थिंक 9000 आएगा, और आउटर कॉलम में 54,000. बिल्डिंग प्लस हुआ तो वो भी आएगा फर्नीचर के नीचे. ओके, 9,000. Okay. After this there is no journal क्वेश्चन बाकी नहीं है, ऐसे कह सकता हूँ मैं. आपको कहा है जर्नल एंट्रीज करना है, मतलब आपके सारे जो रीवैल्यूएशंस थे ना वो खत्म हुए. तो अगर मैं अभी आपको कहूँ कि आपने अभी क्या किया, आपने डेबिट में कुछ रीवैल्यूएशंस किए और क्रेडिट में, तो डेबिट के रीवैल्यूएशंस का जर्नल एंट्री क्या होगा? P&L एडजस्टमेंट डेबिट 222, और उसके बाद फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग डेबिट और एडजस्टमेंट क्रेडिट. सो दीज आर योर डेबिट रीवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री. कभी कभी सम स्टूडेंट्स का स्पीड थोड़ा कम होता है, तो वो लेजर्स को रफ वर्क में पूरा बना के उनको टाइम नहीं मिल पाता, तो आप ऐसे करके 1 by 1 जो जर्नल एंट्रीज है आप कर सकते हो, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आप जितना लिखो उतने आपको मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगी. लिटिल बाय लिटिल रैदर देन वेट के मैं पूरा लेजर करूँगा, उसको टोटल करूँगा और उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, जर्नल एंट्रीज. दिस कैन ऑलवेज बी डन. ओके, 1 by 1 वहाँ यहाँ करके कुछ ना कुछ आपकी एंट्रीज बन ही जाएगी. तो ऊपर आया डेबिट रीवैल्यूएशन का एंट्री और अभी आया क्रेडिट साइड रीवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री. ओके, आफ्टर दिस ज़्यादा कुछ बच नहीं जाता, टोटलिंग बच जाता है. आप बैंक अकाउंट को टोटल कर लो या P&L एडजस्टमेंट.
बैंक मैंने अभी कर लिया, बाद में करोगे तो भी चलेगा, बट करना, क्योंकि भूल जाओगे तो फिर ये बैलेंस शीट ऊपर का टोटल नहीं हो पाएगा। आपको बैलेंस आया क्रेडिट में और फिर ये डेबिट में, तो बैंक बंद, गुडविल बंद, अकाउंट बंद, बैंक बंद नहीं हुआ। एडजस्टमेंट का आपको क्रेडिट साइड हैवी है, तो डेबिट में द डिफरेंस इज द प्रॉफिट डिफरेंस विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू द ओल्ड पार्टनर्स in the old ratio, not sacrifice, old ratio. So पद्मा एंड कुमुद में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3600 to 400 एंड आई रिपीट, ये अगली चीज है, ये आपका अगला पड़ाव है। सो इसका एंट्री एडजस्टमेंट डेबिट साइड टू पद्मा टू कुमुद, सो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। ओके, आपका अगला पड़ाव, अगर मैं थोड़ी ढंग की हिंदी बात करने की कोशिश करूं। ओके, सो हियर गोस जर्नल एंट्री, उसका क्या होगा। सो P&L एडजस्टमेंट डेबिट, ये जो आपको दिखता है, टू पद्मा कैपिटल टू कुमुद कैपिटल, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूट, ओके, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ग्रेट, यहाँ तक तो गाड़ी आ गई। इसके बाद ये जो लेजर आपको पीछे नजर आता है, इसमें आपने क्या किया, आपने उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे दिया क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। फिर ये जो मेरे पीछे है आसपास, ये टैली होगा। इसके लिए पहले तो मैं स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ, वरना मैं बोलूँगा मैं ऊपर जाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर, एंड वन बाय वन तीनों पार्टनर्स को टोटल करता हूँ। पद्मा का क्रेडिट हैवी है, डेबिट में 4500 माइनस किया, डिफरेंस आया। कुमुद ऑलमोस्ट सेम स्टोरी, डेबिट में डिफरेंस 4400, एंड आशा का कैपिटल पवित्र है, उसमें कोई मिलावट नहीं। एक्चुअली ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पवित्र है, शुद्ध है, ये आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम्स में काम आएगा। ये तीनों होता है बैलेंस, जो वहाँ से उठ के वो डेबिट है, बैलेंस शीट में क्रेडिट में आने वाला है, बैलेंस शीट में क्रेडिट में आने वाला है। तो ऊपर गया जी क्रेडिट में, तीनों का टोटल बाहर गया। प्लीज नोट, आपको यहाँ पे बैलेंस आया, बैलेंस, उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं, और उसके बाद में आपने ऊपर बैलेंस शीट में लिखा, उसका भी एंट्री नहीं। बैंक में आया बैलेंस, उसका भी जर्नल एंट्री नहीं। अभी द ओनली थिंग रिमेनिंग इज द टोटलिंग 2,47,500, तो द लेजर इज डन, नो मार्क्स फॉर दिस। बट देन जर्नल में क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये सम खत्म हुआ और जो भी आया या तो वर्ड बैलेंस या तो बैलेंस शीट में आया। सो यू हैव नो फर्दर जर्नल एंट्रीज। तो लास्ट में मैंने अभी क्या किया, टोटलिंग, तो जर्नल में भी मैं लास्ट में टोटलिंग ही कर रहा हूँ, विच इज़ 96,900, एंड दीज आर दी एंट्रीज। मुझे लगता है करीबन 8 एंट्रीज आए हैं, कभी 8, कभी 7, कभी 5, कभी 6, वो डिपेंड करता है ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स रिक्वायरमेंट्स। बट येस, लेजर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप पूरा लेजर कर सकते हो, फिर जर्नल कर सकते हो, या थोड़ा लेजर उसकी जर्नल एंट्री कर लो, थोड़ा लेजर उसकी जर्नल एंट्री कर लो। यहाँ पे अगर कोई चीज़ अप एंड डाउन होती है, कोई परेशानी या प्रॉब्लम की बात नहीं है। इवेंचुअली आपको सारी चीज़ें कवर अप करनी है, विच आई होप बाय माय एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा नहीं बहुत बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे पुराने मित्र हो तो कृपया कर शेयर ज़रूर करें लेक्चर को दोस्तों के साथ में, उनकी भी सहायता मदद हो जाएगी, सपोर्ट उनको मिल जाएगा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। एंड अगर आप नए हो तो बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइए। द एनालिसिस, द एनालिटिक्स, द डेटा ऑफ दिस channel shows that around 35% people have subscribed, around 65 people और 65% people ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ डेफिनेटली प्रेस द सब्सक्राइब बटन। द इंक्रीज ऑफ द चैनल will automatically digitally push it to more and more students, more and more people, जिनके लिए जो ये लेक्चर का कंटेंट है वो यूज़फुल रहेगा। जब तक दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।